Hello everyone. In this class we are going to talk about the remaining questions of the exercise 13.2 in which up to the question number 4th we have solved. So let's proceed from the question number 5th. And the given question is find the value of lambda. Find the value of lambda if vector A and vector B are in such a way. Two vectors are given in this question. First vector A is equals to 2i plus lambda j plus k, and vector B is equals to 4i minus 2j minus 2k. What we have to calculate here? We have to calculate the value of lambda, and one condition is given: these both of the vectors are perpendicular to each other. It means in the earlier classes we have discussed what is the condition of the perpendicular and parallelism. The condition of the perpendicular was the dot product of any two vector is equals to 0. Then both of the vector will be perpendicular. Why? We know that A dot B is equals to magnitude of A vector, magnitude of B vector into cos theta. If A and B are perpendicular, then theta will be 90 degree. It means cos 90. So we can say that vector A, vector B cos 90, or this value is equals to 0. So vector A into vector B into 0, and final answer is 0. So therefore this is the final and last condition to show that two vector A and B are perpendicular to each other. So this condition we will apply in this case, and from here we will try to calculate the value of lambda. So let's proceed. How should we solve? It is given that क्या दे रखा हमें A and B, vector A and B are perpendicular vectors. Perpendicular हुआ, then therefore vector A dot vector B is equals to क्या होगा? 0. So vector A is this one and B is this one. 2i plus lambda j plus k dot 4i minus 2j minus 2k, which is equals to 0. Two methods we have to calculate the product of dot product of any two vector. First is magnitude of A into magnitude of B into cos theta. But in this case the theta is not available, so we will use the second condition or the second method for this dot product. Second method is just multiply the I element with the I, J with J and K with K. So our result will become 4 to the 8, lambda minus 2 lambda, and minus 2 is equals to 0. Minus 2 lambda plus 6 is 0, or we can say that minus 2 lambda is equals to minus 6, or lambda is equals to 3. So this is the required or the final answer of our question number 5th. I hope so that you understood the process of this one question. Now let's proceed a new concept, which is projection of a vector on the other vector. What did I say? हमें एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि प्रोजेक्शन क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है. प्रोजेक्शन ऑफ a vector on the other vector. Let's suppose now we are going to talk projection of a vector. प्रोजेक्शन का मीनिंग आप जानते ही, वो लुकिंग लाइक अ प्रोजेक्टर कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इट इज अ वेक्टर बी, क्लियर, एंड दिस इज अ वेक्टर ए. ठीक है, तो हम इसके ऊपर वेक्टर ए का मैं क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. हमें अभी यहां से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. ध्यान रखना ये उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है,
वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो सिचुएशन अलग होंगी, फॉर्मूला मेथड वही रहेगा, बस उनकी वैल्यूज थोड़ी सी एक्सचेंज हो जानी है। और वो किस टाइप से होंगी, हमें ए का प्रोजेक्शन बी पे ड्रॉ करना है। इसका मतलब हम ए के ऊपर ये लो कुछ मान लो, मैंने ऐसे मान लो कि इसके ऊपर ये लाइट रेज है जो कि पैरेलल है, ठीक है यहां तक। अब ध्यान से इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज यहां तक बनेगी, ये वाली जो होगी वो होगी इसकी इमेज। क्लियर बात यहां तक। हमें ये जो लेंथ है, इस लेंथ को तो बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये पॉइंट मान लेता हूं मैं ए, ये पॉइंट ले लिया मान लो बी, और ये ले लिया सी, या फिर ओ ले लो, ए ओ, ये हो गया ए वेक्टर, ये पॉइंट है ए और ये बी, और इसको बोल देता हूं मैं सी। ठीक है यहां तक। अब हमें क्या कर, देखो प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन आपका होगा ये जो लेंथ इमेज बनी है ओ ए की, ओसी, ओसी की जो लेंथ होगी वो होगी आपका प्रोजेक्शन। इट मींस लेंथ ऑफ ओसी, ठीक है, लेंथ ऑफ ओसी। अब प्रोजेक्शन वेक्टर किसको बोलेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर होगा ओसी लेंथ पे जो वेक्टर बनेगा उसको प्रोजेक्शन वेक्टर बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे वेक्टर ओसी, या फिर ठीक है ओसी वेक्टर ऐसे बोलना चाहते कैसे भी हो जाएगा ये। तो ओसी की जो लेंथ होगी उसको तो बोलेंगे आप प्रोजेक्शन, और ओसी जो वेक्टर बनेगा वो होगा आपका प्रोजेक्शन वेक्टर। अब बात ये कि ओसी कैलकुलेट करें कैसे, लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, एंड हाउ टू कैलकुलेट द वेक्टर ओसी। इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक है यहां तक बात, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओसी। तो ओसी को मैं प्रोजेक्शन तो पी से डिनोट कर लेता हूं, वेक्टर पी, पी फॉर प्रोजेक्शन, ठीक है, ये वाला पी है, ये पी हुआ। अब देखो पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये लेंथ होगी, तो मैं ओसी इज इक्वल्स टू ये बोल सकता हूं शायद बेस, या फिर ऐसे ले लूं ओसी अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू कोस थीटा। एम आई राइट। ओसी क्या है, एक मैं भी वेक्टर के फॉर्मेट में नहीं ले रहा हूं, ये एक मैग्नीट्यूड यूज ले रहा हूं, इसीलिए इनके ऊपर वेक्टर अप्लाई नहीं कर रखा है। मैग्नीट्यूड ओसी कितना हुआ, पी मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है बात यहां तक, इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ये हो गया वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोस थीटा, एंड दिस is what, this is the length of OC, or we can say that it is known as projection, or we can say that this is the projection of vector A on vector B। क्लियर है बात यहां तक। तो ये तो रहा प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। दो फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंट टाइप के, एक तो जब आपके पास थीटा अवेलेबल हो, एंड अदर इज इफ थीटा इज नॉट अवेलेबल और अनअवेलेबल। तो ये जब है तब थीटा की अवेलेबिलिटी आपके पास है। अब बात ये आती है कि प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए हमें इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो फॉर्मूला क्या होगा ध्यान देना आप। तो मैं इसको प्रोजेक्शन को पी मैग्नीट्यूड ऑफ पी से डिनोट कर सकता हूं, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। इसको इससे मैच करवाने की कोशिश करें तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। इसका मतलब हो गया ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो ये हो गया वेक्टर ए कोस थीटा मैग्नीट्यूड में, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए।
क्लियर है बात यहां तक। अब देखो नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब प्रोजेक्शन वेक्टर कैलकुलेट करना है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट, देखो बी कैप का मतलब होगा वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है ना, तो इसको लिख सकते हैं अपन वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दोनों सेम ही प्रोसेस है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर। अब हमें इसके लिए वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हमें ये ओसी की लेंथ पता चल जाए, ओसी की लेंथ पता चल जाए, और इसी डायरेक्शन में चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, बी का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। बी का यूनिट वेक्टर जो भी होगा, फिर अपन उसको क्या कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस मैग्नीट्यूड का हमें, देखो इसकी यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो जाएगा इसी डायरेक्शन में 1 यूनिट का एक वेक्टर, ठीक है, और उसको इसके मैग्नीट्यूड से, इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस लेंथ का हमें इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल जाना है। क्लियर है बात यहां तक। तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या रहा आपका, पी वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना हमें क्या कैलकुलेट करना, पी वेक्टर, क्योंकि पी वेक्टर एक वेरिएबल है अपना, हमें इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो मतलब ये वाला। क्लियर बात यहां तक। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ कहां से पता चलेगी, वो पता चलेगी यहां से, जो कि हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर बात यहां तक। तो ये हमें एक नया वेक्टर मिल गया, जिसको अपन इस टाइप से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको ये इनटू लगा दो चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ये वाली, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों में डॉट प्रोडक्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये अपना परफेक्ट फॉर्मूला रहा है, एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, और थर्ड फॉर्मूला ये रहा। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करी है, यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करा है, ये क्लियर हो गया होगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, जिसका फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ एट विच वी आर जस्ट मेकिंग ए प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये अपना हो गया यूनिट वेक्टर, और फिर अपन ने इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा अपना ये वाला फंडामेंटल, मतलब ये दोनों सेम रहेंगे। और बी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। और ये मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मतलब ये हो गया कि हमें ये वेक्टर पता करना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस पूरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करते हैं। यूनिट वेक्टर मैंने मेंशन कर दिया बी कैप से, और फिर इसके इस मैग्नीट्यूड से यदि अपन मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है। सो प्लीज pause the video and note it down. Start to explain the last fundamental with an example, and as example I am selecting the question number 6th, and the given question is find projection of the vector। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोई एक वेक्टर दे रखा है, लेट्स सपोज द गिवन वेक्टर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6th। गिवन वेक्टर्स आर, क्या क्या है, फर्स्ट इज वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू 4i माइनस 2j प्लस के, एंड द सेकेंड वेक्टर वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3i प्लस 6j माइनस 2k। ये दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, मतलब हमें ए का प्रोजेक्शन बी पे कैलकुलेट करना है। ठीक है यहां तक। तो हमें कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना मतलब हमें वो लेंथ कैलकुलेट करनी है, वेक्टर कैलकुलेट नहीं करना, लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखो मैं इसको P से डिनोट कर लेता हूं प्रोजेक्शन को, और हमें वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। देन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू यहां पर अपने पास थीटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्लियर है बात यहां तक। ए वेक्टर डायरेक्टली अवेलेबल है, बी कैप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं बी कैप कैलकुलेट करता हूं। बी कैप इज इक्वल्स टू, बी कैप का फॉर्मूला हो गया वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
क्लियर है बात यहां तक? चलिए फिर अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 36 प्लस 4 49 is equals to under root 49, or we can say that magnitude of vector b is equals to 7. Is it okay? Now apply this value in this case. Then unit vector, therefore unit vector of b is equals to, vector b is 3i plus 6j minus 2k upon 7. Or finally what we can say that, we can say that unit vector of b is equals to 3 upon 7 I plus 6 upon 7 j minus 2 upon 7 k. ये मिल गया हमें b वेक्टर। अब ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, from equation first, projection of the vector a is equals to a vector जो कि 4i minus 2j plus k dot 3 upon 7i 6 upon 7j minus 2 upon 7k। थीटा अवेलेबल है नहीं तो हम कोस थीटा वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे, देन मल्टीप्लाई दैम डायरेक्टली। तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 12 अपॉन 7 एंड देन दीज बोथ माइनस 12 अपॉन 7 एंड देन दीज बोथ माइनस 2 अपॉन 7। देन p मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल्स टू, एलसीएम इज 7, 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 7। और लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती तो हम माइनस का सिंबल इग्नोर कर देंगे और व्हाट कैन वी से, और वेक्टर p इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑफ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6th। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ दिस वन क्वेश्चन। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होगा जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में करेंगे। पहले मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 8th। देखो क्वेश्चन नंबर 8th क्या रहेगा, इफ द मैग्नीट्यूड, हमें ये दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं a एंड b और इनके सम का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है a माइनस b, सॉरी a माइनस b। देन प्रूव दैट वेक्टर a एंड b बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कंडीशन होगी तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का जो केस था वो क्लियरली हमें पता है मैग्नीट्यूड a डॉट b क्या होना चाहिए, 0। तो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है, a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 0। कैसे भी लाओ चाहे, ये यदि कॉन्सेप्ट अपन प्रूव कर देते हैं, LHS और RHS ये वाला आ जाता है तो हम ये कह पाएंगे कि a एंड b बोथ आर परपेंडिकुलर। तो देखो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट इन बोथ साइड्स, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, मैं इसको यूं बोल सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर a डॉट वेक्टर a, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका मतलब हो गया a प्लस b डॉट a प्लस b। सिमिलरली a माइनस b डॉट a माइनस b। क्लियर है? नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन की थी। 3 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्क्राइब की थी। फर्स्ट थी कम्यूटेटिव, सेकंड वाज द एसोसिएटिव एंड थर्ड वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैं यहां पे थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, लिख देना आप, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ
डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये बनेगा ए डॉट ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सिमिलरली हियर ए डॉट ए माइनस बी एंड देन माइनस बी ए माइनस बी। क्लियर है, यहां पे डॉट आएगा। नाउ ओपन द ऑल ब्रैकेट्स, ये तो ये बना प्लस ए डॉट बी प्लस इसको भी ए डॉट बी लिख दो चाहे बी डॉट ए लिख दो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल यही था, ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए दोनों सिमिलर होते हैं, और ये बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी एंड माइनस बी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, सॉरी यहां पे प्लस, और ये हो गया इससे कैंसिल। इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड कैंसिलेशन लो, और ये रूल होता है लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लो। क्लियर, ये बना अपने पास 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस 2a डॉट बी, इसको इधर ले आओ, ये बना 4a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट a डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। और यदि ये कंडीशन अपन प्रूव कर पाते हैं then we can say that both the vectors are perpendicular to each other, therefore vector A is perpendicular to the vector B. Clear? Now I am going to start the next 9th question, which is if coordinates of points A, B, C and D are given, then prove that vector AB and vector CD are mutually perpendicular to each other। देखो हमें यहां पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A, B, C, D आर, A का है 3 to 4, बी का अपने पास है 4, 5 एंड -1, सी के लिए है 6, 3 एंड 2 एंड डी के लिए है 2, 1, 0 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है यहां तक बात? ये हमें ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब हम क्या करना चाहेंगे, हमें ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट वेक्टर ए बी एंड सी डी, क्या वेक्टर ए बी एंड सी डी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहला सबसे पहले कि हमें वेक्टर ए बी कैलकुलेट करना एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर सी डी। आफ्टर इट वी विल वी विल फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द बोथ ऑफ द ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि यदि उसका रिजल्ट, इफ द रिजल्ट ऑफ both dot product of both the vector will be 0, then what can we say? We can say that both the vector will be perpendicular. Finally हमें क्या करना है, AB वेक्टर कैलकुलेट करना है और CD वेक्टर कैलकुलेट करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देना है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें वेक्टर AB कैलकुलेट करना है, CD, तो पहले अपन वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए का देखो 3i प्लस 2j प्लस 4k, और हम इसको यूं बोल सकते हैं ओ ए वेक्टर के से डिनोट कर सकते हैं, जो कि होगा 3i प्लस 2j प्लस 4k। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी एंड इट विल बी 4i प्लस 5j माइनस k, एंड थर्ड सी के लिए हो जाएगा वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू 6i प्लस 3j प्लस 2k, एंड सिमिलरली डी के लिए होगा और डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस j, k के लिए 0 बोल सकते हैं अपन क्योंकि 0 की होगा। ठीक है यहां तक बात। अब देखो नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, ये अब हमें वेक्टर कैलकुलेट करना है, वेक्टर ए बी। देन नाउ ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या आपके पास 4i
प्लस 5j माइनस के एंड देन माइनस 3i 2j प्लस 4k, ऐसा कोई सीन दे रखा है। 4i माइनस 3i इज i, 5j माइनस 2j इज 3j, माइनस के माइनस 4k इज माइनस 5k, और ये क्या मिल गया हमें, वेक्टर ए बी। नाउ नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सी डी। वेक्टर सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ डी माइनस ओ सी, जो कि होगा ओ डी यहां से यहां से 2i प्लस जे माइनस 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 ओ सी यहां से 6i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है यहां तक। अब इनको सेपरेट कर देना है, तो माइनस 4i माइनस 3j एंड माइनस 2k, ये रिजल्ट मिला हमें। अब हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। इफ टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, देन वेक्टर ए बी डॉट सी डी क्या होना चाहिए, 0। तो ए बी क्या आपके पास, ए बी यहां से ये रहा, i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k डॉट माइनस 4i माइनस 3j माइनस 2k। मतलब हमें 0 प्रूव करना है इसके लिए, ये नहीं कि मैं 0 इक्वल में रख दें, नहीं, वो तो क्या होगा कि जब हमें परपेंडिकुलर दे रखा है तो हम 0 को आगे इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज वी हैव टू प्रूव द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ देम इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बनेगा, -4, ये कितना बनेगा 9, और ये कितना बनेगा माइनस कितना बनेगा प्लस 10, 5 2 जा बनना तो 10 ही चाहिए, 10, और जो कि 0 नहीं आया, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक क्या होगी, सर्च करते हैं, ये बना, इधर से ये बन गया, वो ये बन गया, ये बन गया, ओ बी माइनस ओ ए क्या होगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये देखो यहाँ गड़बड़ हुई है, 5j माइनस 2i ये बनेगा 3j एंड माइनस 5k, ये ठीक है, 2i ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये माइनस 4i माइनस, ये देखो ये गड़बड़ हो गया, एक माइनस 2j बनेगा एंड माइनस 2k। तो ये चेंज हुआ है थोड़ा सा, एक तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2j। अब इनका प्रोडक्ट करें तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, -4 -6 एंड प्लस 10 एंड इज इक्वल टू 0। सो द LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर AB एंड CD are perpendicular. Clear? So this is the answer of this one question. So please pause this and note it down. I hope it is enough for the today's class, and remaining portion, question number 6 and the concept behind of it, and question number 10 11 12 we will solve in the next class. Okay students.